Sister, please carry on. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں کورس 2 میں آپ کو خوش آمدید، آپ سب کو مبارکباد کہ آپ نے کورس 1 بہت کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ آپ کے نئے سفر کا آغاز ہے اور امید ہے اسی جوش جذبے کے ساتھ آپ اس کو کنٹینیو کریں گے اور کہیں پہ بھی آپ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور آپ نے اس کو بھی بہت اچھے سے اور اس طریقے سے لمحہ بلمحہ آپ نے سیڑھیاں چڑھتے جانا ہے اور انشاءاللہ تمام کورسز کمپلیٹ کرنے ہیں۔ آج کل ہمارا اس کورس کا آغاز ہوا، تھوڑا سا ابتدائی تعارف تھا، ابھی انشاءاللہ ہم آگے باقی پڑھیں گے۔ آج ہم جو گرامر کے کمزور افعال، کل ہم نے ایک نئی چیز پڑھی، اس کو ہم تھوڑا سا اس کی دہرائی کریں گے۔ صفحہ 1 اشارہ A۔ اچھا، اس میں ہم نے جو اشارات یاد کرنے ہیں وہ ہاتھ کے اشارے سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ صفحہ نمبر جو ہے اس کا 1 کا بایاں حصہ آپ نے اس کو کتاب کے سامنے رکھنا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یوں اگر کتاب قرآن پاک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کو یوں سامنے رکھ کے آپ اس کے سامنے یوں اپنی طرف اس کو اشارہ کریں گے اور اس کے اشارے آپ یاد کریں گے۔ صفحہ بائیں جانب کا، اس لیے اس کے اوپر ہی انگوٹھا رکھا، اپنے طرف اس کو انگوٹھے کو رکھیں۔ آپ سب اس کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 انگلیاں یوں اکٹھی ہوں گی، درمیان میں یہ 2 ہیں اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ ہمارا الگ ہے۔ ہم اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے، ریوائز کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے۔ اشارات یاد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی مدد سے فوراً سے ہمارے ذہن میں پورا وہ سبق، پوری چیزیں آ جائیں گی اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ پریکٹس سے آپ بہت اچھا کریں گے۔ سسٹر سائمہ سجاد کائنڈلی اپنی ویڈیو آف کر لیں، آپ اپنی ویڈیوز آف کر لیں پلیز۔ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، ٹھیک ہے؟ یہ 4 ہمارے پاس اشارے ہیں۔ سب پہلے صفحہ نمبر 1 ہے تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ تعریف کس کی؟ اللہ کی تعریف ہے، دعا بھی ہم نے اسے کرنی ہے، ہدایت ہم نے بات کرنی ہے متقیوں کے لیے، اور صفات بھی انہیں کی بیان کی جائے گی اس میں۔ تو ویسے تو یہ ہمارے جو اے پارٹ ہے اس کا حصہ ہے، لیکن گرامر میں ہم جب اس کی دہرائی کریں گے تو ریویژن والے اس میں روزانہ اس کو انشاءاللہ سارے پوائنٹس کو روز روز دہرائی کریں گے اور آپ کو یہ بہت زبردست یاد ہو جائیں گے۔ آپ میں سے کوئی اس کو ریوائز کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں جی۔ سسٹر مس خالد، آپ کروائیں اس کی دہرائی، انمیوٹ کریں۔ جی السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ شکر الحمدللہ۔ یہ اللہ کی تعریف، ہدایت جی کی دعا، متقین کی ہدایت، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات۔ جی ماشاءاللہ، زبردست۔ اور کون کروائے گا؟ سسٹر مہاجرین آپ کروائیں۔ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ وہ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے، ہدایت کی دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے اور صفات بھی اللہ کی بیان کی ہے۔ نہیں دیکھیے، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، یہاں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تعریف اور دعا جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ سے تعریف، اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کے لیے دعا مانگنے، لیکن جو ہدایت ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کی ہدایت کی بات کی گئی اور ان کی صفات بیان کی گئی ہے صفحے میں، ٹھیک ہے؟ چلے، اور کوئی کروائے گا اس کو؟ صدف، سسٹر صدف جبین، آپ کسی کو اسی طریقے سے ریپیٹ کروائیں۔ ہاتھ کا اشارہ آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی تعریف، اللہ سے دعا، متقیوں کی ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ہاں جی، اللہ کی تعریف، پھر ہدایت کی دعا ہم نے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ہدایت دے، اور پھر اس میں متقیوں کی ہدایت کی بات کی گئی ہے، ان کی صفات بیان متقیوں کی صفات کی۔ جی اچھا جی۔ قرآن کریم کے ہر سطر میں اوسطاً 9 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تقریباً اگر ہم پورے ایک پیش کی اس کی اوسط نکالتے ہیں تو تقریباً 9 الفاظ آتے ہیں، اور اس میں 3 اسم، 3 فعل، 3 حرف اور ایک جو ہے وہ اسم فعل حرف ہم نے وہ پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لائن پہ 3 3 ہو، یہ ہم نے ایک اوسط نکالی گئی ہے، جو اوسط ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔
पूरे पेज के औसत निकालें तो तकरीबन किसी पे 2 होंगे, हो सकता है किसी पे 1 हो, किसी पे 4 भी हो सकते हैं, लेकिन औसतन 3 इसम 3 फेल 2 हर्फ 1 इसम फेल हर्फ जो है वो होता है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इसमें आप अगर ये देखें, इसम आपको याद होगा सबको माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि इसम की पहचान हमने क्या पढ़ी थी कि शुरू में अलिफ लाम है, आखिर में तनवीन है हमारे पास, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, वाव नून या नून अलिफ ता, ये इसम की पहचान है। अब आप इसमें देखें, पहले पेज पर आपको 4 लाइन, जो पहली लाइन है 70 उसमें 4 नजर आएंगे, दूसरी में आपको 2 हैं, इसमें अगली में 2 हैं, लेकिन आगे फिर 4 हो गए, तो वो एक रेशो जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से फेल की बात करते हैं, फेल यानी काम, इसमें अस्मा भी शामिल है, जैसा फाइल मफूल और फेल हमने पढ़े थे, और जो फाइल वो वाले हैं उसमें उनके नीचे नीचे पट्टी दी गई। ये भी आप देखेंगे किसी लाइन में 2 है, किसी में 3 है, और ये इसी तरीके से इस शरह से चल रहे हैं। इनको इसलिए शामिल किया गया कि इनको इसम अफ़आल के तहत हम सीखते हैं। हर्फ जो है ये भी हमने पढ़े और बहुत अच्छी से हमने इनकी प्रैक्टिस भी की। तो नमाज के कोर्स के बाद अगर 10 नए हरूफ सीख देंगे हम, जो नमाज का कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह 95% हरूफ जो है वो हम सीख लेंगे। अला, मीन, इन्ना, अला, नाम, अला, ठीक है, बार बार भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये हम कर चुके हैं। अब ये आप पूरे को देखें तो पूरे पेज पे आपको इसम फेल हर्फ जो है ये नजर आ रहे हैं। हरूफ बदलते नहीं हैं, ला और मा वगैरह। अस्मा हमने इनकी जमा पहले हमने सीखी, वो नून और या नून के साथ, जैसे मुस्लिम, मुस्लिमीन, मुस्लिमून वगैरह। इसी तरीके से अभी हम नए जो अल्फाज हैं कुछ नए तरीके से हम और तरीके से जमा बनाना सीखेंगे, जिसमें हम वो नून या नून नहीं लगाएंगे, तो कुछ नए रूल्स होंगे, जैसे कल्ब, कुलूब। नेक्स्ट है जी अफ़आल, ये असली चैलेंज है। हमने पढ़ा फेल, माजी पढ़ा, मुजारे पढ़ा, अमर पढ़ा, और ये मुख्तलिफ शक्लों में हमारे पास अफ़आल जो आते हैं, तो इनकी थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फेल की अक़साम, 3 हरूफ वाले सुलासी मुजद हम उनको कहते हैं, सुलासी, ठीक है, सलासा 3 से उसका मानी 3 में आता है। तो सेहतमंद अफ़आल हमने पढ़े, फातहा, नासरा, नासरा, दारबा, सामिहा। चलें जी मेरे साथ इसको रिवाइज करें, इसके मीनिंग्स आप बोलते जाएंगे। फातहा, उसने खोला, नासरा, उसने मदद की, उसने मदद की, दारबा, उसने मारा, सामिया, उसने सुना। माशाल्लाह जबरदस्त, आपको बड़ा अच्छा सबक याद है। पिछला याद रखेंगे तो अगला और इजी होता जाएगा। अच्छा जी, सेहतमंद हमने पढ़ लिए माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपको याद भी है। तो अब हम बात करते हैं कमजोर हरूफ, जो हमने इस सबक में हमने उनको करना है। ठीक है, कमजोर जो अफ़आल होते हैं ये जब हम कमजोर, इनको क्यों कहा गया कि जब हम बीमार होते हैं, इसको बड़ी एग्जांपल आसान है याद रखने के लिए, कोई तकलीफ है, कोई भी तुम्हारे मुंह से चोट लगी, अचानक से गिर गए, कोई कमजोरी होगी, इस तरह की आवाजें हम निकालते हैं। अब देखिए ऊपर आपको वो जो एक डायग्राम बनी वो भी ये याद रखने में मदद देगी, आपको याद रखने में हेल्प करेगी कि कमजोर अफ़आल से क्या मुराद है। तो वो या अलिफ हमजा, ये जो हमारे पास है, ये इनको हम आपके पास ये 3 जो है ना, ये आ ये है, इनको हम कहते हैं कि ये कमजोर हरूफ है। सब इसमें अब रूल ये है, कमजोर हरूफ का पहला जो उसूल है वो ये है कि कमजोर हर्फ जब किसी भी फेल में आता है तो उस पूरे फेल को कमजोर कर देता है। आपके अगर बाजू में दर्द है, आपकी टांग में दर्द है, तो आपका पूरा जिस्म जो है वो उससे मुतासिर होता है। आप चलने में फिरने में आपको तकलीफ है, जिस्म के किसी हिस्से में भी आपको कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई कमजोरी है, कोई मसला है, तो पूरा आपका जिस्म जो है ना वो इफेक्टेड होता है। इसी तरीके से जो हमारे पास ये जो कमजोर हरूफ वाले जो जितने भी अल्फाज आते हैं, एक हर्फ कमजोर है 3 में से, तो पूरा हर्फ कमजोर के जुमरे में आ जाता है। वाहबा, वादा, काला, तो ये अब सारे जो है ये इनमें से, ठीक है, हमारे पास एक एक हम देखें तो हमारे पास है, लेकिन ये सारे के सारे कमजोर हरूफ अल्फाज जो है ना बन जाते हैं, अल्फाज बन जाते हैं। 3 हरूफ वाले हमारे पास सलासी अफ़आल वाले 3 अफ़आल हो गए हैं। एक सेहतमंद हमने पढ़े, जो है वो एक कमजोर। सेहतमंद, फातहा, नासरा, दारबा, सामिया। कमजोर की 4 मिसालें आपने याद रखनी है, वाहबा, वादा, कौला, ज़ादा। जरा इसको रिवाइज करवाएं कमजोर अफ़आल को।
मैं करवाऊं? وهب وعد قال زاد वहाबा वादा काला ज़ादा। जी, वहबा माशाल्लाह वअदा काला ज़ादा। माशाल्लाह जबरदस्त। वअदा काला ज़ादा। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि कमजोर हरूफ वैसे बेशक कमजोर है, लेकिन इनका बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग एक रोल प्ले करते हैं। जितनी दफा सेहतमंद अफाल आए हैं उतनी ही दफा कमजोर अफाल है, लेकिन 9000 दफा जो है वो सेहतमंद है, तो 9000 बारी कमजोर अफाल जो है वो हमारे पास इसमें हमें नजर आते हैं कुरान पाक में जब हम देखते हैं। तो बेशक नाम उनका कमजोर है, लेकिन वो अपना पूरा हमारे पास हर लाइन में हर सतर में हमें वो नजर आते हैं, और वो सेहतमंद अफाल जितने ही वो हैं। हर लाइन में अगर एक सेहतमंद है तो और एक कमजोर भी साथ होता है। ठीक है, फातिहा के हैं हमारे पास, नसरा, दारबा, सामिया, ये बाब आपको याद है। इन अबाब में से कोई सेहतमंद अगर हर्फ मौजूद है तो आगे वहबा वअदा काला ज़ादा इनकी तर्ज का कमजोर हर्फ भी उसमें आ जाता है। इसके बाद एक और जो आगे किस्म हमने पढ़नी है वो मजीद फी की है। मजीद ज्यादा उसमें, फी इसमें, जैसे इख्तलाफा इस्तगफारा, इख्तलाफा उसने इख्तिलाफ किया, इस्तगफारा उसने मग़फ़िरत मांगी। इख्तलाफा में अलिफ ता ज्यादा है और उसमें अलिफ सीन ता, इस्तगफार में ज्यादा। इनको हम इंशाल्लाह बाद में बहुत डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, दोहराई भी करेंगे। इस पेज से फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमारा टारगेट कमजोर अफाल है। अब कमजोर हर्फ कहाँ कहाँ पर आएगा? शुरू में, दरमियान में, आखिर में, हर जगह पर आ सकता है। किसी लफ्ज के शुरू में होगा, कहीं दरमियान में होगा, कहीं आखिर में। वाहबा जो वहाँ पे आपको देखे रेड नजर आ रहा है, सुर्ख उससे रोशनाई से लिखा हुआ, वो हमारे पास कमजोर है। वाहबा वादा इसमें शुरू में है, काला ज़ादा इसमें दरमियान में है, दाआ हदा इसमें आखिर में है। इनके टेबल फाला की जगह बनेंगे, छोटी मोटी तब्दीलियां आएंगी और इस तरह के अफ़ाल कुरान पाक में 9000 बार आते हैं, यानी कि एक लाइन में तकरीबन एक बार जरूर आता है। अच्छा जी, अब जरा थोड़ी सी हमारे पास पिछली क्लास की दोहराई हो जाए। हमने कुछ जुमले सीखे थे इन अब्वाब को याद रखने के लिए जो हमारे पास थे। चले जी, मिसेस खालिद ने फौरन माशाल्लाह से हैंड रेस किया है, हमेशा की तरह एक्टिव हमारी एक पार्टिसिपेंट। चले जी, आप जरा इसको अच्छे से करवाएं। फातिहा अगर कुरान खोलोगे नसारा तो मदद, अल्लाह की मदद आएगी। दाराबा वरना मार पड़ेगी, सामिया इसलिए सुन लो। माशाल्लाह जबरदस्त। और कौन करवाएगा जी? ये तो अब सबको फर याद होना चाहिए। हर जो है वो टीचर है उसको बहुत अच्छा सा करवाते हैं, और जिन्होंने सर काशिफ के साथ किया तो उनकी बार बार की। सिस्टर वालिया शाहिद, आप करवाएं। फतह अगर कुरान खोलोगे नसरत तो अल्लाह की मदद आएगी, दरबा वरना मार पड़ेगी, समिया इसलिए सुन लो। जी माशाल्लाह जबरदस्त। अब जैसे आपने ये 4 जुमले याद रखे और तमाम वो अब आपका मैं आसानी के साथ याद हो गया। इसी तरीके से हम कमजोर अफाल के बारे में जब उनको देखेंगे तो उनमें भी हम कुछ इसी तरह की जुमले जो है वो हम याद कर लेंगे और फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 3 जुमलों की मदद से कमजोर अफाल जो है उनका स्टाइल जो है उसको याद रखना बहुत आसान है। वाहबा वादा, वाहबा का मतलब है उसने दिया, वादा उसने वादा किया, यानी कि अल्लाह ने देने का वादा किया। ये हमारा पहला जुमला है। तो जब ये ज़हन में आएगा कि अल्लाह ने देने का वादा किया है तो वाहबा और वादा ये दोनों आ जाएंगे। आगे काला उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया, ज्यादा किया। अगला जुमला हमारे पास हो गया बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। तो ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस जब ज़हन में आए, अल्लाह ने देने का वादा किया है बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, तो ये 4 देखें हमारे पास ये हमने अफाल याद कर लिए। दाआ उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी, इसलिए दुआ करो हिदायत की। तो 3 जुमलों में हमने माशाल्लाह से 6 हमारे पास तर्ज के अफाल जो है वो आ जाएंगे। चलेंगी, अब इसको कौन प्रैक्टिस करवाएगा? बारी बारी सारे लोग कोशिश करें ताकि फटाफट आप सबको याद हो जाए। जो नए लोग हैं, कुछ नए नाम है, वो भी कोशिश करें। चलें जी, हम सिस्टर सदफ को इस दफा देते हैं, मौका देते हैं, आप करवाएं सिस्टर। माशाल्लाह बड़े हैंड वहाबा रेज। उसने दिया, वादा उसने वादा किया, अल्लाह ने देने का वादा किया है। काला उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। दआ उसने दुआ की, दहा हदा उसने हिदायत दी, इसलिए दुआ करो हिदायत की। वेरी गुड माशाल्लाह। चलें जी, सिस्टर अजरा आप करवाएं इसी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वहाबा इसने दिया, वादा इसने वादा किया, अल्लाह ने देने का वादा किया है। आला इसने कहा, ज्यादा इसने बढ़ाया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। दआ इसने दुआ की, हदा इसने हदायत दी, इसलिए माशाल्लाह। दुआ करो हिदायत की। माशाल्लाह जी, जबरदस्त, बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं माशाल्लाह, हमें बुलाना नहीं पड़ा, खुद से कर रहे हैं। वेरी गुड। सिस्टर हानिया, आप करवाएं। ओके मैम। वहाबा इसने दिया, वादा इसने वादा किया, अल्लाह ने देने का वादा किया है। काला इसने कहा, ज्यादा इसने बढ़ाया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। दआ इसने दुआ किया, जिसने दुआ की, हादा इसने हिदायत दी, इसलिए दुआ करो हिदायत की। हाँ जी, हादा, माशाल्लाह, जबरदस्त बेटा, वेरी गुड। चलें जी सिस्टर मिसेस खालिद, अब आप रह गए, आपकी बारी है। वहाबा उसने ज्यादा दिया, उसने वादा किया, अल्लाह ने देने का वादा किया है। काला बल्कि कहा, ज्यादा दूंगा। दआ इसलिए दुआ करो, हादा हदायत की। जी अच्छा, वाहबा में उसने दिया, ठीक है, यहाँ पर हम ज्यादा की बात हम आगे जो है वो उसमें डील करेंगे। जबरदस्त, माशाल्लाह। चलिए, और कोई करवाना चाहता है इसी को? हमारे कोई और पार्टिसिपेंट, हमारे ब्रदर्स अगर कोशिश करना चाहें, माशाल्लाह इतने नाम नजर आ रहे हैं भाइयों के, तो कोई करवाना चाहेगा? चलिए सिस्टर अमरीन, आप करवाएं। वाहबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, अल्लाह ताला ने देने का वादा किया है। काला उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया, बल्कि अल्लाह ताला ने ज्यादा देने का वादा किया है। दा उसने दुआ की, हादा इसने हदायत दी, अल्लाह ताला ने इसलिए दुआ करो हदायत की। जी, अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। चलें जी सिस्टर सवेरा, जल्दी से आप करवा दें, फिर हमारी रेगुलर क्लास का टाइम होने वाला है। अनम्यूट करें खुद को सिस्टर सवेरा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करें। चलें जी, आई थिंक कोई इशू है, इनका अनम्यूट नहीं हो रहा। उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा। चलें, आप कोशिश करें, एंड पे जब दोबारा हमारी क्लास के एंड पे दोबारा रिवीजन की जब बारी आएगी, तब तक आप थोड़ा सा उसको सीख लें। अगर कोई इशू है तो किसी भी एक ट्यूटर को मैसेज करें, वो आपको गाइड कर देते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, इसको फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।